Morning to all of you. In continuation of our past, that is the bonding or chemical bondings. Here, types of the bonds. In this lecture, we will discuss the part of the bonds and its types. Basically, how the bond is formed, how the bond is obtained. Why why two oppositely charged species, why two electron species are combined and formation of what a bond. Means as we can say a chemical bond is formed between two oppositely charged species or by sharing pair of electrons. The constituent in atoms, as you can say constituent in atoms, a bond is formed between two oppositely charged species of the electron species. The force of attraction which holds together constituent in atom is known as what bond. So as you can say here the 2, 8, as you know this KL11 cell, KLM cell. 2, 8, whatever it may be. Means A atoms having positive charge, B atoms having negative charge, having tendency to donate the electrons with what? Completely transfer of electrons. Completely transfer of electron. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है. So A atoms having one electron, B atoms having one electrons. This A species share with this species. Again, what it becomes to 2. Again, this species is share with A species, it becomes to 2. Means what? It going to the formation of what is octet species and k-element species. It may be not 2 or 8 or 8 or 18. So means what? This it along with what? Along with octet rules. Along with octet rules, in previous lecture we have discussed the part of octet rules. In continuation of the past, bond and its types. So bond is formed between two oppositely charged species. A bond is formed between the two electron species by sharing pair of electrons. Here, by sharing pair of electrons, a bond is formed between the metal and metals. One is weaker and another is the stronger. One is the poor and another is the rich species. So means what? Positive with positive. Again, you can say positive charge is there. So this positive charge. This one is the positive charge, this one is the positive charge, this one is positive. This one is a single electron. This electrons is delocalized. Okay, this electrons is what? As you can say, electrons is a delocalization between here. This oppositely charged species, the electrons are delocalization negative to positive, again positive to negative. So this bond is formed between what? Metal and metals. As you can say, metallic bond by sharing pair of electron, covalent bond. By in oppositely charged species by between the metal and non-metals, between non-metal, metal and non-metal, ionic bond. Between non-metal, यहाँ पे हमने कहा था नमो. So that is what? नमो. Non-metals, covalent bond. Non-metal, covalent bond. Metal, metallic bond. Metallic bond. And fourth type का यहाँ पे बॉन्ड हम डिस्कस करते हैं between the Lewis acid and what? Lewis base. Lewis acid and Lewis base के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कहा जाता है coordinate bond. Specially this bond is formed between what? Metal atoms and what? Metal and ligand. So that as you can say metal ligand के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है. So ligand having the electrons having tendency to donate electron to the central metal atoms. This bond is known as what? Coordinate bond. This bond is known as what? Coordinate bond. So the metal acts as the Lewis acid and this ligand as you can say this is the ligand act as the Lewis base. यहाँ पे हम step by step 4 bond का discuss करेंगे. Another one of the bond that is known as the organometallic bond. So that bond is formed between the organo, that is means what? The carbon atoms, organic compounds, that carbon between carbon and metal atom. The types of the bond is known as what? Organometallic bond. First यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. हमने देखा कि बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड means what? The oppositely charged species. Bond is formed between oppositely charged species. The bond is formed between the two electron species. As you can say, a chemical bond is formed between two oppositely charged species. Means what? This force of attraction. The force of attraction. When we call the force of attraction oppositely charged species, then we can say the force of attraction which holds together constitute in atom or molecules is known as what? A bond. So that is called as a chemical bond. पहला बॉन्ड यहाँ पे डिस्कस करते हैं. Ionic bond.
a bond is formed, a chemical bond, ऐसा हम कहेंगे, a chemical bond is formed by completely transfer of electron, from one species to the another is known as a chemical bond is obtained by completely transfer of electron from one species or one atom to another atom is known as ionic bond. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं NaCl. So as we have having this sodium having atomic number 11, chlorine having atomic number 17. यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कंबिनेशन लिखेंगे. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7. So outermost electronic configurations of this sodium having 1 electrons and chlorine having 7 electrons. Sodium having 1 electrons and chlorine having 7 electrons. So as you can see 2,8,1. So after share pair of electron it become what? After completely transfer of electrons means 1 electron is transferred from sodium to chlorine atoms. एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देना आसान है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा. फिर -1 हम यहाँ पे लिखते हैं 2,8 बनता है. सो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. उसके बाद इसके पास 2,8,7 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं. सो 1 electron is added. So whatever electron is transferred from sodium to chlorine means it becomes to 2,8,8. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है. So how then formation of what? After loss of electron means what? We can say loss of electron. So that is called as what? Oxidation. O means यहाँ पे ऐसा याद रखना है oxidation. Loss of electrons. So sodium becomes to positive charge and this is the after gain of electrons chlorine become to negative charge. Means whatever this oppositely charged species here sodium and the chlorine when it come close to each other then formation of the bond between what? Sodium and chlorine atoms means what? This types of the bond is known as what? Ionic bond. The ionic bond is always formed between what? Metal atom and non-metal. Metal और non-metal के बीच में जो bond form होता है उसको कहते हैं ionic bond. So these are the one of the example of what ionic bond. Sodium chloride. Just like to this, we can explain this what a potassium chloride, KCl, and this is also LiCl. So these types of the bond, this bond formed between this potassium chloride and this lithium chloride. So this is again what? Ionic bond. Then we will discuss another example of the ionic bond, that is magnesium chloride. If we are having this is the magnesium chloride, this magnesium having atomic number 12, and as we know that chlorine atoms having atomic number what? 17. Again, how the electron is transferred from one atom to another atoms in a molecules or in a complex, that is magnesium chloride. We are having this is the magnesium atomic number 12, chlorine atoms atomic number 17. Okay, chlorine atom atomic number is 17. So whatever here, so that is electronic combination 2,8, यहाँ पे आएगा 2,8,2, यहाँ पे रहेगा 2,8,7. So here outermost electron, this orbital cell contain 2 electrons. Means what? Magnesium having the 2 electrons and the chlorine atoms having what? 7 electrons. So how many chlorine atoms here? So that is the 2 chlorine atom. So whatever we are having this magnesium atom is here and this 2 chlorine atom I am writing here 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. So one electron is transferred to this species, that is 2,8,2. So after loss of -2 electrons, again here loss of -2 electrons, this oxidation is takes place here. Whatever
आफ्टर ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम्स को डोनेट करेगा, एक इस क्लोरीन एटम को डोनेट करेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 2,8,7 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 2,8,7 था। इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, एक इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। देखना बेटा क्या होता है, magnesium it becomes to positive charge and what Cl becomes to 1 negative charge, means what the bond again इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। so that is called 2,8 after loss of electron it becomes to 2,8,2 after gain of electron it becomes to 2,8 after gain of electron, after gain of electrons, after loss of electron, after loss of electron, after gain of electron. So this is how it become to the octet rule. इसका octet rule क्या होता है, complete होता है। Then formation of what, MgCl2. So this is how formation of the MgCl2 magnesium chloride linear structure bond angle having what a 180 and the sp hybridization. So this is again we have been explained the part of the second type species magnesium chloride. Just like to this we can explain the CaCl2. कैल्शियम क्लोराइड का भी हम यहाँ पे ऐसा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स टू द क्लोरीन एटम्स। इसका ऑक्सीडेशन होता है और इस दो क्लोरीन एटम का रिडक्शन होता है। आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, देन व्हाट फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल है और ये दो नॉन मेटल है। अगेन वी कैन से नॉन मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। This is called as ionic bond. In continuation of the past, we discuss the part next bond that is called as what, covalent bond. Second types हम यहाँ पे discuss करते हैं covalent bond. Covalent bond. Second types of this bond, covalent bond. A chemical bond is formed by sharing pair of electrons. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो स्पीसीज के बीच में जिसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, शेयरिंग पेयर होता है। सो एज यू कैन से a chemical bond is formed by share pair of electrons, by sharing pair of electron, by sharing pair of electron is a bond is formed that is called as covalent bond. A chemical bond is formed by share pair, as you can say by sharing pair of electrons, by sharing pair of electrons. Sharing pair of electron is known as covalent bond. Is known as covalent bond. This bond is formed between non-metal and non-metal. Such types of the bond is formed between the non-metal and non-metals. So this is what Namo Namo Namo. Bond is formed between the non-metal and non-metal is known as the covalent bond. How these types of the bond is formed? By sharing pair of electrons. Sharing pair करके दो species के बीच में sharing pair होता है. So for example we are having the hydrogen molecule, atomic number 1 electronic configuration again 1 and 1 here. So that is we are having hydrogen atoms 1 electron, hydrogen atoms 1 electron. So what about is the share pair. इसका outermost shell में तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन है. After share pair it becomes to what? It becomes to what? 2 electrons and it becomes also 2 electrons. After share pair of electrons, it octet complete 2. As you can say 2,8,8. So this octet, as the K cell is complete here. So that's why we can say a bond is formed between the share pair of electrons. The share pair of electrons of 2 hydrogen atoms. A bond is formed. This is known as what? Covalent bond. इस bond को covalent bond कहा जाता है. Such types of the bond is formed by the non-metal and non-metals. This hydrogen atoms is non-metal, another hydrogen atom is non-metals. By sharing pair of electrons, इस दो इलेक्ट्रॉन दो स्पेसिस के बीच में क्या होता है, इसका आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन से इसका शेयरिंग पेयर हुआ.
So then what we can say, this bond is formed by shared pair of electrons. अब example, second example लेते हैं molecule Cl2 molecule और chlorine molecule और bromine molecules. Chlorine molecules यहाँ पे लेते हैं, इसके atomic electronic configuration, outermost electronic configuration is collected 2,8,7. So this outermost electronic configuration में 7 electrons है. This total number of this is the, we can say, general electronic configuration 2,8,7. इसका outermost shell में कितने electrons है? 7 electrons है. दो species यहाँ पे लिखेंगे Cl and Cl atoms 1 2 3 4 5 6 7. So we are having this is the 2,8,7. Here also 2,8,7. Here we can explain this part of example. This is chlorine molecules or the bromine molecules or fluorine molecules. Halogen हम यहाँ पे explain कर रहे हैं. Cl2 molecules, इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. देखो 2,8,7 ऐसा हमने लिखा यहाँ पे 2,8,7. अब ये इसके साथ शेयर करेगा. सो आफ्टर शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बिकम टू 2,8,8. वन इलेक्ट्रॉन का इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन के साथ शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग किया. सो अगेन अब यहाँ पे देखना है कि ये भी क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा. सो व्हाट हैपन हियर 2,8,8. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट. सो दे व्हाट हैपन Cl इस दोनों के बीच में क्या फॉर्म हुआ, बॉन्ड. सो दिस टाइप्स ऑफ द बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन मेटल बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Just like to this we can explain these types of the second example. Third one example F2 molecule हम explain कर सकते हैं, bromine molecule हम यहाँ पे explain कर सकते हैं, just like to the chlorine molecule. Okay, again another types we can explain. This is the methane molecules. Organic compound हम यहाँ पे explain कर सकते हैं methane का. non metal hydrogen chloride हम यहाँ पे explain कर सकते हैं HCl. For example we are having the hydrogen chloride. Hydrogen having 1 electrons. The example number third one is here. Hydrogen having 1 electron, chlorine having the 7 electrons. Whatever. इसका एक इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये बनेगा आफ्टर शेयरिंग इट बिकम टू वाटर 2 electrons. ओके, इसका हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है. सो दिस वाटर 2,8,7. यहाँ पे इसके आउटर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन हम यहाँ पे लिखते हैं 2,8,7. आफ्टर शेयर पेयर ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम्स विद दिस हाइड्रोजन एटम इट गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2,8,8. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. देन फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड दिस इज कॉल्ड बिटवीन व्हाट, हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन. 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें टोटल कितने हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होता है 1. सो this HCl hydrogen, so this hydrogen is a non-metal. Second water chlorine is a non-metal. Again just like to this we can explain the HF molecules as well as HBr molecules. Okay, hydrogen fluoride, hydrogen bromide, hydrogen chloride के जैसा हम यहाँ पे explain कर सकते हैं ये दो example भी. So these are what bond, that is these types of the bond is known as what a, these types of the bond this is called as what a covalent bond between what a non-metal and non-metals. Okay. ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स कैन एक्सप्लेन मीथेन मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे हम मीथेन मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं. फास्फोरस अगेन व्हाट O2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. O2 मॉलिक्यूल्स N2 मॉलिक्यूल्स. इफ यू आर इन O2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ओके, सी हियर द ऑक्सीजन एटम्स having atomic number 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं 2,6. ओके, so we are having these types of the bond. Is how we can explain these types of the bond. Oxygen atoms. Again oxygen atoms के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है. Then we can say this 6 electron 1 2 3 4 5 6. Okay, again another types 1 2 3 4 5 6. अब देखो इस ऑक्सीजन का outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. इसका outermost में हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिखे, 6 इलेक्ट्रॉन. इसका outermost में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे, 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखे. अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम 2,6. इस यहाँ पे लिखते हैं 2,6 हम यहाँ पे लिखेंगे. अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये ऐसा इसके साथ शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया है ना, मतलब यहाँ पे +2 आएगा. यू नो 2,8 है ना, ऐसा बना. अब देखो ये भी इसके साथ ऐसा ही करेगा, शेयर है ना, ऐसा शेयर. कितना एडिशन हुआ बेटा, यस +2 इलेक्ट्रॉन. तो क्या बना 2,8. सो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट. सो व्हाटएवर इज formed the bond between the O2O the double bond क्या बना, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला. सो दैट्स व्हाई एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, दो के साथ शेयरिंग किया ना, तो यहाँ पे 2 एक बना सिग्मा बॉन्ड,
दूसरा बना पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड टू मॉलिक्यूल्स दिस व्हाट। अब देखो लोन पेयर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 4 लोन पेयर है ना, 4 लोन पेयर है बेटा। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, यस 1 पेयर 1 2 2 बॉन्ड पेयर। सो दिस इज हाउ O2 molecule is obtained. O means what? O is what? O is what? O is what? O is what? Non-metal. Again, O is what? Non-metal. Namo. Non-metal, covalent bond. Very good. So again, यहाँ पे हम CH4 molecule भी explain कर सकते हैं. Just like to the CH4 molecule C2H6. Again what? C2, yes, again what? C2H6. So this C2H6 again what we can say C2H6 here. So the covalent bond is obtained. Again the second example we can explain CH2 double bond CH2. Again third example also we can explain. This is the part of HC triple bond CH. So this is what alkane molecules. This alkene and this one is alkyne. ये तीन example हम explain कर सकते हैं. Such types of the part we have been completed in the overlapping concept. Okay, means how the bond is formed. So that is hydrogen atoms, carbon atoms having the 4 electrons and hydrogen atoms having the 1 electrons. Okay ना, because of the 1 electron present in the outermost shell. That's why this. अब ये देखो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, yes come on, कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा बेटा, शेयरिंग पेयर करेगा, ठीक है। कितने बार शेयर पेयर करेगा, 4 बार। देखो इसके बाद मैं लिखता हूं कार्बन का, सबसे पहले कार्बन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 2, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिखते हैं 2, क्या करते हैं बेटा 4 है ना, इसका बेटा नंबर 6 होता है 2,4। अब देखो 2,4 इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन हमने लिखा। अब ये इसके साथ एक बार शेयरिंग करेगा, इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार। कितने बार किया, यस 4 बार, मतलब 4 बार किया तो शेयर पेयर 4 बार हुआ। सो इट बिकम टू व्हाट 4,8। सो इसका ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस मीथेन मॉलिक्यूल CH4 मॉलिक्यूल ऐसा लिखते हैं जस्ट लाइक द काइट पता है आपको, काइट का मतलब क्या लिखते हैं, हां पतंग मतलब। वेरी गुड बेटा, चलो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इसका शेप होता है बेटा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ओके, क्या होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TD। क्या बोलते हैं, टोटल क्या बोलते हैं, TD टेट्राहेड्रल। ऐसे टोटल बॉन्ड कितने बॉन्ड है बेटा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा। चलो इसका एब्रेविएशन क्या हुआ, यस कम ऑन sp3। वेरी गुड। सो दिस वाला टेट्राहेड्रल एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं 109 डिग्री। सो 109 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। हाइब्रिडेशन sp3 होता है, 109 बॉन्ड एंगल है, हाइब्रिडेशन sp3 होता है। और ये हाइड्रोजन और ये कार्बन नॉन मेटल होते हैं, इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। सो जस्ट लाइक टू दिस 2 एग्जांपल दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हमने CH2 लिखा। पहले एग्जांपल में हमने क्या लिखा था, O2। इसके पहले एग्जांपल में हमने O2 मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किया। तो O2 में कितने टाइप से बॉन्ड फॉर्म किए हमने, यस कम ऑन 2। कौन से यस वो पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड है ना, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा है ना, कौन सा एक इथीन मॉलिक्यूल है और दूसरा कौन सा बेटा, यस कम ऑन O2 है ना। दिस O2 इज व्हाट, ऑक्सीजन। वेरी गुड। दिस O2 एंड इथीन मॉलिक्यूल्स, इसमें सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा कौन सा है, पाई बॉन्ड है, इजंट पाई बॉन्ड है। और ये होता है लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, नॉन बॉन्डिंग, इसको नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब देखना है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, बोलो चलो, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। याद रखना है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर ऐसे याद रखना है, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। वेरी गुड बेटा, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। याद रखना सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के ये 2 टाइप्स होते हैं, हमने एक्सप्लेन किया। कोवैलेंट बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज obtained from between what, yes, non metal and non metal. कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज obtained in between non metal and non metal. कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मेटल नॉन मेटल के बीच में। आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल, कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल, कोवैलेंट बॉन्ड
नॉन मेटल, नॉन मेटल। मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं। मेटालिक थर्ड टाइप्स। मेटालिक वेरी सिंपल, मेटल मेटल के बीच में फॉर्म होने वाला मेटालिक है ना। हाउ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, छोटंसं इलेक्ट्रॉन, छोटंसं इलेक्ट्रॉन, छोटंसं असं गेलं, असं जातं, असं जाऊन ते असं होतं। हे काय होतं, त्याला काय म्हणतं, इलेक्ट्रॉनचं डिलोकलाइजेशन असं त्याला म्हणतं। जब इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है मेटल और नेगेटिवली चार्ज में, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसका बेटा, पॉजिटिव चार्ज मेटल का होता है। मेटल कौन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। क्या होता है बेटा, पुअर होता है। मेटल इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, पुअर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पुअर, एसिडिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है ना। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल नेचर क्या होता है इसका, बेस। इसका नेचर क्या है बेटा, एसिड। एसिड और बेस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। कौन सा एग्जांपल, झिंक एंड झिंक। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करो और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करो, क्या होगा, Zn becomes to Zn2 positive after loss of 2 electron, again Zn2 positive after loss of 2 electrons। इस दोनों के बीच में कैसा है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक थोड़ा सा, मतलब इसका ये किसकी वजह से हो रहा है, कोई तो भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। अब ये डिलोकलाइजेशन करता है ना मेटल और उसके बीच में। तो जो दोनों में मेटल है, हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 मेटल है, लेकिन एक क्या है और एक क्या है, rich है ना। So that bond is formed between the metal and metal is called as what, metallic bond। okay बेटा, yes। चलो आगे जाना है, लास्ट पार्ट है बॉन्ड का, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी इंटरेस्टिंग बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। A bond is formed between Lewis base and Lewis acid। अब सबसे पहले हमें लेविस बेस कंसेप्ट क्या है ये समझना होगा, है ना। लेविस बेस, लेविस acid, लेविस एसिड, कौन सा बॉन्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, यस बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कशाला म्हणायचं, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेविस एसिड और लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा, उसको क्या कहा जाता है, यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक है लेविस एसिड, हमने कहा तो लेविस मेटल, और यहाँ पे यल लिखो, यल होता है लिगैंड। क्या होता है ना, इसको लिगैंड कहते हैं। ये लिगैंड क्या होता है, लेविस बेस होता है। लिगैंड क्या होता है बेटा, लेविस बेस। और ये क्या होता है, मेटल। मेटल क्या होता है बेटा, लेविस एसिड, याद रखो। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, वो डोनेट करेगा, दे दो ले लो, एक देता है तो एक लेता है। ऐसा टाइप्स का जो बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, कोऑर्डिनेट। A bond is formed between ligand and metal, a bond is formed between Lewis base and Lewis acid is known as। चलो ऐसे कौन से एग्जांपल हम देखते हैं। लेविस बेस क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं बेटा, ये मेरे पास है NF3 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है, NH3, अमोनिया यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग। दिस इज द ट्राइफ्लोरोमाइंस, दिस इज द नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया। अब इस दोनों के बीच में देखो BF3 यहाँ पे मैं लेता हूँ, क्या है BF3,
BBr3 भी ले सकते हैं, AlCl3 भी ले सकते हैं। अब देखो जो ये बोरॉन है ना, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5 है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 2,3। अब मुझे बताओ इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 8 से कम है क्या? नहीं। मतलब इस ये कौन सा ऑक्टेट में आता है? कौन सा ऑक्टेट फॉलो करता है? इनकम्प्लीट है कि नहीं बेटा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल लिए वो वे करता है। तो देखो इनकम्प्लीट है मतलब उसकी जरूरत क्या है? लेने की है या देने की है? लेने की, एक्सेप्ट करने की। सो द टेंडेंसी ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? फिर एक्सेप्ट करेगा ये। सो दिस टाइप्स ऑफ द बोरॉन हैविंग, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है ना। आगे लक्षात आलं मग इलेक्ट्रोफिलिक नेचरला इलेक्ट्रोफिलिक काय असतं? इलेक्ट्रोफाइल, यस it is a poor electrophile poor, so this is a acidic in nature. So this BF3, which types of the acid? So as you can say what? Lewis acid. Lewis acid, the atoms or group of atoms having tendency to accept the electron, मतलब ऐसा स्पीसीज वो एक्सेप्ट करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन से या नेगेटिव चार्ज है। देखो लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड किसको बोलते हैं? कि जिस स्पीसीज पे, जिस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन से या नेगेटिवली चार्ज है, उस एटम्स को वो एक्सेप्ट करता है। जैसे कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, इलेक्ट्रॉन पुअर है। क्यों कहा पुअर? क्यों कहा इलेक्ट्रोफाइल? क्यों कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? बिकॉज ऑफ उसका वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल ओबे करता है। 8 से कम इसके पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। स्पेशली द बोरॉन फैमिली, BaCl3, BBr3, BF3, AlCl3, AlBr3, these are the Lewis acid. कौन से? AlCl3, AlBr3, BBr3, BF3, Fe, Br3. देखो फिर this is the iron is also that's fast. Fe, Br3, Cl, Cl2. These are what? So these are what? Lewis acid. Thus electrophilic in nature means what? Positively charged species is also called that is the Lewis acid. पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वो भी लेविस एसिड होते हैं, ये भी लेविस एसिड है। अब देखो ये बोरॉन हमने इसको कहा लेविस एसिड, और ये कौन होगा बेटा? फिर लेविस बेस। लेविस बेस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा अनदर स्पीसीज को, उसको कहा जाता है लेविस बेस। सो टेंडेंसी ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द अदर स्पीसीज कॉल्ड द लेविस बेस। ये लेविस बेस है। टेंडेंसी ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, the group of atoms having tendency to donate electron to the other species, to another species is called the Lewis base. Okay, तो ये हुआ हमारे यहाँ पे Lewis base। ये कौन होगा? Lewis acid, अगेन ये Lewis acid। So अब यहाँ पे हमें बॉन्ड फॉर्मेशन करना है between the two species, Lewis acid और Lewis base के बीच में। चलो यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे हम इसका रिएक्शन करेंगे लेविस एसिड और लेविस बेस का। चलो बेटा कमान, लेविस बेस हम यहाँ पे लेते हैं NF3, यहाँ पे लेते हैं NH3। ओके बेटा, अमोनिया। दो एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। BF3 है, यहाँ पे BBr3 ले सकते हैं या BF3 ले लो। देखो बॉन्ड है कैसा फॉर्मेशन। देखो हम इसका कंसीडर करते हैं, इसका हाइब्रिडेशन sp क्या होता है? इसका हाइब्रिडेशन होता है sp, नाइट्रोजन का sp3, इसका हाइब्रिडेशन है sp3। चलो बोरॉन का इसमें हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp2, इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, ओके ना? इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp2। चलो अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच, नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच ऐसा बॉन्ड। कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन, है ना? अब यहाँ पे कितने फ्लोरीन एटम है बेटा? यस, कितने फ्लोरीन एटम है? 3 फ्लोरीन है ना, 3 फ्लोरीन है। यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। कम ऑन, मैंने ऐसा लिखा। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? यस, हाइड्रोजन कितने इसके साथ? इसमें फ्लोरीन है ना, इसमें फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब देखो जब इसको बॉन्ड डोनेट करते हैं ना, इसका हाइब्रिडेशन जो है इसका, ये जो है ये बोरॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आया और इसमें इसके पास से मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, लेकिन इसके पास इसका जो ये है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। बॉन्ड बनाना,
बॉन्ड बना। अब इसमें भी बॉन्ड बना, सो इट बिकम्स टू व्हाट, इट इज हैविंग sp3 हाइब्रिडेशन, अगेन हियर द sp3 हाइब्रिडेशन। देखो इस नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बचे, 1 2 3 4, बराबर, मतलब इसके बीच में बॉन्ड है, देखो बेटा, और बी में कितने बॉन्ड आ गए यहाँ पे, 4, तो फिर हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3 है कि नहीं बेटा, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर नीट जेडब्ल्यूसी के भी क्वेश्चन होता है। अब sp3 का मतलब sp3 का sp3 रहा, लेकिन sp2 का क्या हुआ, sp3 हुआ, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर आल्सो, sp2 बिकम टू sp3, हियर sp2 बिकम टू sp3। अब देखो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये कौन सा है, कौन सा बॉन्ड है बेटा, ये है आपका हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो नॉट ओनली दिस बट आल्सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल होते हैं, है ना, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, इसके जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इसके बीच में, मतलब निकेल और ये CO, इस CO को बोलते हैं कार्बोनिल, देखो बेटा CO को बोलते हैं कार्बोनिल। इसके बीच में भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कैसा, देखो ये है हमारा मेटल और ये कौन है बेटा, लिगैंड, है ना। अब ये मेटल है 1 और लिगैंड कितने हैं, 4, मेटल है 1 लिगैंड है 4, CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, क्या कहते हैं इसको, दिस लिगैंड इज नोन एज व्हाट, कार्बोनिल लिगैंड होता है। अब ये जो बॉन्ड है मतलब ये इसको डोनेट कर रहा है, देखो सॉरी, डोनेट कौन करता है, लिगेंड डोनेट करता है ना, लिगेंड डोनेट करता है, मतलब लिगेंड कौन है यहाँ पे, कार्बोनिल, ऐसा डोनेट करेगा। सो दिस टाइप्स ऑफ द बॉन्ड विद कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, दिस टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इसका नाम है निकेल टेट्रा, टेट्रा क्या बोला क्योंकि 4 है, टेट्रा कौन बेटा, कार्बोनिल। सो द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द निकेल मेटल, दैट मेटल इज नोन एज व्हाट, निकेल मेटल एंड व्हाट, कार्बोनिल लिगैंड, मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके तरीके के और एक दो एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड we can say transition metal and what, ligand, जैसे कि हमने NiCl4 फॉर्मेशन किया, NiCl4, NiCO4, NiCl4 2 नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, CONS3 टेकन 6 टाइम P पॉजिटिव। देखो अभी आप बोलेंगे अब यहाँ पे चार्ज कैसा है ना, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा, FeH2O टेकन 6 टाइम 3 नेगेटिव। देखो अब इस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हाउ द एग्जांपल्स आर एक्सप्लेन्स एज वी आर हैविंग, यहाँ पे इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। इसमें अलग अलग शेप होते हैं जो कि हमें VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसकी ज्योमेट्री क्या होती है और इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इसमें लीनियर होता है, ट्राइगोनल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, पेंटागोनल होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है, ऑक्टाहेड्रल स्पेसिस होता है। So this part is explained in what, valence bond theory and crystal field theory। तो यहाँ पे हमें जब हम थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे VBT CFT में तो ये पार्ट वहाँ पे आपका कवर होगा। तो देखना है बेटा यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल है, दैट इज NiCl4 निकेल यहाँ पे है ना, निकेल सेंट्रल एटम में है, Cn कितने बेटा 4, साइनाइड कितने साइनाइड है 4, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये स्पेसिस मतलब ये ऐसा ब्रैकेट ऐसा होता है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, और उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किंवा काय म्हणतात बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट असे म्हणतात। ओके, ये और ये जो 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये टोटल नंबर ऑफ द लिगैंड है ना, ये लिगैंड है, साइनाइड लिगैंड है, तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन
नंबर, क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल, इस ये क्या होता है बेटा, मेटल, मेटल होता है। और ये क्या है हमारा, यस कम ऑन, लिगैंड। मेटल और लिगैंड के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए, 4। तो ये कैसा शेप है इसका, दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है बेटा, ये स्क्वायर प्लेनर। अब ये स्क्वायर प्लेनर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। तो क्या एब्रेशन होता है इसका, यस बेटा, इसका एब्रेशन sp3 और dsp2, ऐसा 2 पॉसिबिलिटी होता है ना। सो दैट इज द एब्रेशन इज dsp2। सो हाउ दिस dsp2, why not dsp3, because of here one of the rule that is called as the inner sphere and outer sphere। ये कंसेप्ट हमें देखना है, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर क्या होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल, as you can say स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पेसीज, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पेसीज, ये जो सीरीज होती है, इस सीरीज में हमें डी कब लेना है और यस कब लेना है। इनर स्फीयर क्या होता है, आउटर स्फीयर क्या होता है, डी सब मतलब स्टार्टिंग में डी लेना कब लेना है और स्टार्टिंग में यस कब लेना है, ये हमें बताती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। वो हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज व्हाट वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड व्हाट अजम्पशन ऑफ व्हाट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो तो यहाँ पे सब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल और लिगैंड के बीच में, मेटल और लिगैंड के बीच में। So the ligand having tendency to donate electron to the central metal atoms, then formation of the bond। यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और ये होता है लिगैंड और ये होता है मेटल। Just like to this again CONH3 taken 6 time and this is the 3 positive charge। अब यहाँ पे हम इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। So come on, so that is the CO means यहाँ पे कौन है बेटा, मेटल है ना। CO कौन है, यहाँ पे मेटल है। CO मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, CO मेटल है। कितने यहाँ पे अमोनिया है, 6 है ना। तो यहाँ पे NH3 लिखते हैं, NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया। कितने हुए बेटा, 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो बेटा यहाँ पे कितने अमोनिया है, 6, मतलब लिगेंड 6। इसके बीच में हमने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इसको डोनेशन करने का एक टेंडेंसी है, लिगेंड हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। So this types of the complex is obtained। अब यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में ऐसा लिखते हैं। So that is how we can explain this types of, इसको ब्रैकेट में लेते हैं बेटा। 3 पॉजिटिव चार्जेस का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, 3 पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होता है बेटा, 3 होता है। So कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। टोटल नंबर ऑफ द लिगेंड जितने होते हैं उतना होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 6 है, 6। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, क्या बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या असणार है, 6। सो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, सो दिस इज हाउ अगेन हाउ मेनी बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड, 6। सो टोटल नंबर ऑफ 6 coordinate bond is obtained, 6 coordinate bond is formed, 6 coordinate bond is formed between the metal and ligand। so that is what CONH3 ligand 6 टाइम। इसमें कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, 6 हो गए। इसमें कितने होंगे बेटा, यस कम ऑन, इसमें कितने हो सकते हैं, 5। so this types of the complex molecules it is depend upon what total number of ligand, कितने नंबर ऑफ लिगैंड, कितने नंबर ऑफ लिगैंड अटैच है, वो डिसाइड करता है कि उसमें कितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, हियर वी हैव बीन एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ व्हाट 4 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद में और एक बॉन्ड है ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। So that organometallic bond, the well-known example we have been explaining in order organic chemistry, that is what Grignard reagent। So bond is formed between the so not only Grignard but also Gilman, that is the cadmium, between the cadmium and the carbon, between the copper and carbon, between the magnesium and carbon। Also that's just like to this, okay, between the metal and carbon के बीच में जो bond formation होता है, carbon और metal के बीच में, metal कौन से जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपर और Mg, कार्बन और Mg मतलब RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बन और कॉपर R2CuLi, गिलमन रिएजेंट। so such types of the complex between this complex a bond is formed, that types of the bond is known as what organometallic bond। which types of the bond, organometallic bond। तो यहाँ पे
आयोनिक बॉन्ड में मतलब नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड। और ये जस्ट लाइक यू हैव बीन एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द लिगैंड एंड मेटल, बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।